السلام علیکم ناظرین، آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کا میزبان سید یاسر عباس کاظمی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم جس مقام پہ کھڑے ہیں وہ خیر آباد کے نام سے جانا جاتا ہے، جہاں پہ مزار ہے سید شاہ محمد کبیر رحمۃ اللہ۔ ناظرین، مزار کے بارے میں جاننے کے لیے ہمارے ساتھ ویڈیو میں شامل ہیں پیرن سے تعلق رکھنے والے سید جہانگیر حسین شاہ صاحب۔ السلام علیکم جہانگیر حسین شاہ صاحب۔ وعلیکم السلام جی، کیسے ہیں جی؟ الحمدللہ۔ اچھا، یہ جو مزار ہے اس کی ہسٹری آپ ہمیں بتائیں گے؟ اس کی ہسٹری جو ہمارے پاس سینہ بسینہ چلتی آ رہی ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا، ان نے اپنے بڑوں سے سنا، وہ کچھ اس طرح ہے کہ آپ کی تربت مبارک اس سے قبل نیچے ایک جگہ ہے وہ جس کو شہری کہتے ہیں، کار کے مقام پر آپ کی تربت مبارک تھی۔ اچھا، تو ایک شخص کو اپنے خواب میں اشارہ کیا کہ مجھے یہاں سے اوپر لے کر جائے۔ تو کہا جاتا ہے کہ وہاں پر آپ تقریباً 150 سال آپ کا تربت مبارک وہاں پر تھی، اور اس کے بعد آپ کو یہاں پر لایا گیا۔ تو ناظرین، ابھی ہم جس جگہ پہ کھڑے ہیں بالکل ہمارے عقب میں شاہ جی بابا کا مزار ہے، اور اس کو ہم ڈیٹیل میں ابھی وزٹ کریں گے۔ ہمارے شاہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں جو اس کا تعارف کروائیں گے کہ یہ ان کا جسدے کا خاکی کیسے، کب اور کون کون لوگ لے کے آئے، اور اس مزار کی تعمیر میں کن کن لوگوں کا ہاتھ ہے۔ تو چلتے ہیں، پہلے مزار کا احاطے کو دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد پھر ڈیٹیل میں ہم باقی باتیں کریں گے۔ یہ آپ کا مزار شریف ہے، شاہ محمد کبیر بن شاہ محمد سلطان۔ کہا جاتا ہے کہ جب آپ کو یہاں شفٹ کیا گیا تو اس وقت بہت سے لوگ، لگ بھگ 4-5 گاؤں یا اس سے زیادہ گاؤں کے لوگ وہاں اکٹھے ہوئے، اور وہاں قرآن خوانی کی گئی، نذرانہ عقیدت پیش کیا گیا۔ جب آپ کی تربت مبارک وہاں کھولی گئی تو کہا جاتا ہے کہ آپ وہاں موجود نہیں تھے، تو لوگوں نے اس کے بعد وہاں ختمانہ پڑھا اور جانوروں کی قربانی دی۔ پھر آپ کی زیارت پر، آپ کی قبر مبارک پر شال ڈالی، اور اس کے بعد جب وہ شال اٹھائی تو اللہ کے کرم سے وہاں آپ موجود تھے، اور آپ کے چہرے پر پسینہ مبارک تھا۔ یہ پسینہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ آپ حاضر تھے، موجود تھے، اور آپ کے اولیاء ہونے کا، آپ کے مرتبے کا اس سے ہم بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ناظرین، یہ مناظر تھے جو ہم نے آپ کو دکھائے اس مزار کے اندرون احاطے کے۔ تو ابھی ہم باہر کھڑے ہو کے، چونکہ اس مزار کا تقدس ہے تو ہم باہر کھڑے ہو کے مزید جو اس علاقے اور اس مزار کی ڈیٹیل ہے وہ آپ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کی آل اولاد میں سے جناب سید عباس علی شاہ صاحب، جو کہ اس وقت سیکرٹری RT ہے۔ تو ہم مزید شاہ بابا کے حضور کی کرامات اور ان کے بارے میں ان سے پوچھنا چاہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت بہت مہربانی۔ شاہ جی صاحب، یہ بزرگ سب سے پہلے خیر آباد، یہ جو گاؤں ہے یہ انہوں نے آباد کیا ہے۔ یہ سب سے پہلے فرد جو یہاں پر آ کر آباد ہوئے ہیں، تو اس کے ساتھ ان کے خادمین آئے جو عوان برادری، ان کی اولاد عوان برادری ہے، باقی جتنے بھی خیر آباد میں سادات برادری ہے وہ ساری کی ساری سید شاہ محمد کبیر اور شاہ جی بابا ان کی اولاد ہے۔ تقریباً 9ویں 10ویں پشت اس وقت ان کی چل رہی ہے۔ خیر آباد میں یہ ساری گاؤں خیر آباد کے اصل مالک یہ تھے۔ شاہ جی بابا خیر آباد والے، ان کے بزرگ سید شاہ محمد سلطان ان کی چھینا میں مزار ہے، اور ان کی جو دوسرے بھائی ہے سید صغیر حسین شاہ محمد صغیر، وہ پیرا میں جتنے بھی سادات ہیں وہ سارے ان کی اولاد ہے، اور خیر آباد میں شاہ جی بابا خیر آباد والے کی اولاد ہے۔ یہ تقریباً 9ویں
10ਵੀं पुश्त इस वक्त उनकी चल रही है। मैं खुद 9वीं पुश्त में हूँ, ज़ाहिर है मेरे बच्चे जो है 10वीं पुश्त है उनकी। ये जिस जगह पर अभी हम खड़े हैं यहाँ पर लगभग 1901 में यहाँ पर इनको लाया था। उससे पहले लगभग 150 साल पहले ये नीचे जो असली गांव खैराबाद था उसमें उनका मज़ार था। तो ये पीछे पहाड़ पर आसमानी बिजली गिरी और शदीद तूफ़ान आया, तो उसकी वजह से वो जितना पहाड़ है वो नीचे आ गया, उसका डेवरेज गांव पर आ गया। तो वहाँ से गांव से लोग भी दाएं बाएं शिफ्ट हो गए उसके बाद, और शाहजी बाबा के मज़ार को वहाँ से यहाँ पर शिफ्ट किया। इनकी बहुत सारी करामात हैं, बहुत सारे इनके हर साल यहाँ पर 2 मई से लेकर 5 मई तक, गुज़श्ता कुछ अरसे से तो रमज़ान की वजह से उसकी डेट जून में गई है, मगर रूटीन में हर साल 2 मई से 5 मई तक उर्स होता है। यहाँ बहुत सारे दाएं बाएं बहुत सारे गाँव, बल्कि मैं ये कहूँ कि मात्रा सबसे बड़ा अगर कोई उर्स होता है तो शाहजी बाबा खैराबाद यहाँ पर होता है। हमारे बसी करामात हैं, वलीउल्लाह थे, आज भी इनकी मज़ार हज़ारों लोग यहाँ पर इधर आकर दुआएं मांगते हैं, हाजात मांगते हैं, अल्लाह ताला उनकी हाजात को पूरा करते हैं। थैंक यू वेरी मच। अच्छा शाह साहब, अब हम इस चूँकि हमने इसका डिटेल विज़िट तो कर लिया, लेकिन अब इसकी हमें डिटेल आपने बतानी है ताकि हमारे जो नाज़रीन हैं वो इस वीडियो को देख के जो इस मकसद है इस वीडियो का वो समझ सकें। तो हमें ये ज़रा बताएं कि इस मज़ार की जो तज़ीन व आराइश है वो किसने की और कब हुई इसकी तज़ीन व आराइश, और उसकी वजह क्या थी, लोगों को पता कैसे चला कि ये औलिया अल्लाह हैं। थोड़ा उस पर रोशनी डालेंगे आप? इससे पहले कि मैं आपको इस मज़ार के बारे में डिटेल दूँ, हमने जैसा कि आपको पहले बताया कि इनकी तुर्बत मुबारक यहाँ से कुछ फासले पर थी। तो जब आपको तुर्बत से बाहर निकाला गया तो एक कसीर तादाद में वहाँ लोग जमा थे और औलिया भी थे, उसमें आम व फहम लोग भी थे। तो आपका जो जनाज़ा मुबारक है वो आपके भाई शाह मोहम्मद सग़ीर के औलाद में से हैं, वो भी अल्लाह के बहुत बड़े वली हैं, फ़कीर शाह बाबा, उन्होंने आपका जनाज़ा पढ़ाया। तो कहा जाता है कि उसमें इतनी दुनिया थी कि किसी को खड़े होने की जगह नहीं मिलती थी। माशाल्लाह। तो वहाँ से जब आपको यहाँ शिफ्ट किया गया तो यहाँ पर उस वक्त मज़ार नहीं था, तो उसके काफ़ी अरसे बाद इस मज़ार का काम सैयद तुराब शाह साहब ने इस मज़ार का काम शुरू किया। सैयद तुराब शाह ये कौन थे? सैयद तुराब शाह एक बहुत अल्लाह के नेक बंदे थे जो आपकी औलाद में से हैं, और उन्होंने इस मज़ार का काम शुरू किया और फिर यूँ लोगों को आहिस्ता आहिस्ता इसकी खबर होती गई, और ज़ायरीन आज यहाँ पर जुमरात और आज हर वक्त यहाँ पर ज़ायरीन का हजूम रहता है। हर साल आपका यहाँ पर उर्स मनाया जाता है, यानी इस मज़ार का सालाना उर्स भी मुनक़्क़िद किया जाता है। जी, इस वो मज़ार किस का महीने में होता है? इसकी पहले तो डेट ये थी कि अंग्रेज़ी महीनों के लिहाज से 6वें महीने में आपका उर्स मुबारक होता था, लेकिन जैसे जैसे वक्त चेंज होता गया, रमज़ान आ गया, तो अब इंशाअल्लाह इनका उर्स मुबारक रमज़ान के बाद होता है हर साल, और उसमें बहुत ज़्यादा ज़ायरीन होते हैं, लोग अपनी हाजात लेकर आते हैं, अल्लाह के फजल से उनकी हाजात पूरी होती हैं, आपकी बहुत ज़्यादा करामात हैं। अच्छा, इस सारे मज़ार की जो देखभाल है उसको कौन देख रहे हैं, इन सारे अमूर को कौन देख रहे हैं? क्योंकि उर्स का भी इंतज़ाम किया जाता है, वहाँ पे लोगों का आना भी होता है, उन सारी चीज़ों की मैनेजमेंट जो की जाती है, उस हवाले से ज़रा हमें बताएं कि कौन लोग हैं जो इसको मैनेज करते हैं? इस मज़ार की जो मैनेजमेंट है वो यहाँ पर इनके मुजावर हैं, वो करते हैं, वो इसकी देखभाल करते हैं। और यहाँ पर मुख्तलिफ़ अक़वाम के लोग हैं, जिसमें सैयद हैं, गुजर हैं, अवान हैं, ये सारे लोग मिलकर इस मज़ार की हिफाजत करते हैं, इसका ख्याल रखते हैं। अच्छा, और ये बहुत खुशी की बात है कि जितने लोग भी हैं उनके अंदर एक तड़प है और एक जज्बा है, एक खुलूस है। तो कोई ख़ास करामत इनकी जो आपने सुनी हो या अकाबर से हमें पता चली हो, ऐसी कोई? देखें, वैसे तो इनकी काफ़ी करामात हैं। ये
दीनी उलूम में बहुत अच्छा, महारत शाह रखता साहब हम बात कर रहे थे इकरामात के बारे में, है। जी तो वो ज़रा हमें कोई एक दो ऐसे वाक़यात जिनसे हमारी थोड़ा ईमान ताज़ा हो जाए और हमारे क़ारीन तक भी ये बात, ये मैसेज पहुँच सके। जी। देखिए, इनकी सबसे बड़ी करामत तो ये है कि जब इनको यहाँ पर शिफ्ट किया गया, तो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इनके चेहरा मुबारक पर पसीना था। ये इनकी एक बहुत बड़ी करामत है। इसके अलावा जब आप यहाँ पर पर्दापोश नहीं हुए थे, तो कहा जाता है कि एक दफ़ा आपने बहुत से लोगों को बुलाया था, लोग घास काट रहे थे। अच्छा। तो जो वक्त हो चुका था वो तकरीबन मगरिब का टाइम हो चुका था अच्छा। और रोशनी ख़त्म होने वाली थी, अंधेरा छाने वाला था। तो कहा जाता है कि ये शाहजी बाबा ने एक आसा मुबारक ज़मीन के अंदर धंसाया अच्छा। और जब तक वो घास सारी कट न गई तो लोग उस रोशनी से फ़ायदा उठाते रहे। यहाँ तक कि लोग अपने घरों में पहुँचे तो आप सरकार ने वो जो आसा मुबारक जब निकाला तो कहा जाता है कि उस वक़्त सहरी हो चुकी थी। तो नाज़रीन, आपने सुना है कि इनके जो सबसे बड़ी करामत है, जो लोगों ने अपनी आँखों से देखा और हमारे कानों तक भी ये बात पहुँची कि इनके हाथ में एक आसा मुबारक था, जिससे इन्होंने जो रोशनी की, ताकि लोग वो जो घास की कटाई कर रहे थे वो कर लें। उसके बाद जब उन्होंने वो आसा निकाला तो वो सहरी का टाइम था। तो ये भी इनकी एक ख़ास करामत थी। उसके अलावा ख़ैर आज भी हज़ारों की तादाद में ज़ायरीन इनके मज़ार पर आते, अपनी नज़राना अक़ीदत यहाँ पेश करते हैं और इसके अलावा मुल्क भर से आते हैं। ये कोई स्पेसिफ़िक इलाका नहीं है कि वहाँ के लोग आते हैं यहाँ पे या कोई ख़ास कौम के लोग आते हैं। ये शाहजी बाबा की एक अज़मत है, एक करामत है कि यहाँ से वो लोग आते हैं यहाँ इनके मज़ार पे हाज़िरी देने, जो यहाँ के मकामी लोग इनको ना तो जानते हैं, ना उनसे कोई उनकी वाक़फ़ियत है। लेकिन इनके मुरीद होने की वजह से वो आते हैं और यहाँ के जो मकामी लोग हैं उनको काफ़ी फ़ैसिलिटेट भी करते हैं और उनकी जो खिदमत होती है वो भी करते हैं। इनके खुद्दाम जो कि इस की देखभाल करते हैं, वो भी माशाअल्लाह से इस मज़ार को उन्होंने काफ़ी बेहतर तरीके से उन्होंने इसको सँभाला हुआ है, इसकी केयर कर रहे हैं। तो मज़ीद शाह साहब इसकी कोई डिटेल आप हमें इनके हवाले से कोई बताना चाहें तो? माशाल्लाह आपने जो बात बताई है, इंशाअल्लाह आप किसी से भी इसको सैटिस्फाइज़ कर सकते हैं। यहाँ इलाके के कोई मख़सूस बंदा नहीं है कि आप फ़लाँ बंदे से पूछें, फ़लाँ बंदे से पूछें, यानी आप किसी बच्चे से भी पूछेंगे ना, तो वो भी इनकी करामात, बेशुमार करामात आपको बताएगा। और इनकी इससे बड़ी और करामात क्या होगी कि यहाँ वो लोग आते हैं जो अस्पतालों से मायूस हो जाते हैं, जो दुनिया से मायूस हो जाते हैं और वो आते हैं यहाँ पर दुआ माँगते हैं और अल्लाह के करम से, अल्लाह के फ़ज़ल से वो यहाँ से सेहतयाब होकर जाते हैं। माशाल्लाह जी। और शाह साहब इस गाँव गाँव की जो इसका महल वक़ूअ है, इसके बारे में हमें कुछ बताएँ। यहाँ और क्या-क्या चीज़ें फ़सल के लिहाज से कौन-सी फ़सलें हैं, फ्रूट्स यहाँ कौन-कौन से हैं? चूँकि ये नगरी मेरे ख़्याल में जहाँ तक मैंने अभी तक महसूस किया, तो ये शाहजी बाबा की नगरी कहलाती है। तो यहाँ पे ख़ैर कुदरत के इनामात तो होंगे, उसके समरात भी होंगे। तो आप हमें कुछ बताएँगे मुख़्तसरन? तो आपने फ़सल का ज़िक्र किया तो मुझे इनकी वहाँ भी एक करामत नज़र आती है। यहाँ के लोगों का कहना है कि उनकी जो फ़सल होती है वो बंजर ज़मीनों से इतनी ज़्यादा फ़सल हो जाती है जो एक ज़र ज़मीन से, जो एक ज़रख़ेज़ ज़मीन से नहीं होती। कहा जाता है कि इनकी जो ज़मीनों से जो फ़सल होती है उसमें से जिन्नात वो अपना हिस्सा नहीं लेते हैं और ये इनकी एक ख़ास करामात है। तो यहाँ पर हर किस्म का फ्रूट पाया जाता है और यहाँ का जो पानी है वो बहुत बेहतरीन पानी है। उसके मुकाबले में यहाँ के आजकल के जो मिनरल वाटर हैं जो मशहूर नामों से, मुख़्तलिफ़ नामों से हैं, जी, वो जी। उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। अच्छा, तो शाह साहब मेरा अगला जो सवाल है वो इनकी औलाद के बारे में है। तो इनकी औलाद की क्या डिटेल है? कितने बच्चे हैं इनके और उनकी आगे मज़ार कहाँ पे हैं और उनकी आगे नस्ल किस-किस एरिया में मौजूद है? जी यासर भाई, अल्लाह की मेहरबानी से ये हम पर अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है कि इनका मज़ार इन्हीं की मज़ार के इनके बेटे जो हैं इनका मज़ार इनके मज़ार की बैक साइड पर है। यानी इनके जो अक़ब में है? जी, जी। ठीक है, तो विज़िट कराएँगे आप हमें? जी, जी, क्यों नहीं। हाँ जी। ये आपके बेटे हैं सैयद अज़ीम शाह। अच्छा, इनका नाम सैयद अज़ीम शाह जी, था। जी। तो इनके कितने बच्चे थे? अज़ीम शाह के ग़ालिबन
5 बच्चे थे, मैं कुछ इसमें कंफर्म नहीं कह सकता। अच्छा, तो ये शाह जी बाबा के सिर्फ ये एक ही बेटे थे या? जैसा कि हमने सुना है, कहा जाता है कि इनके एक बेटे और भी थे, वो वापस चले गए थे कश्मीर, क्योंकि क्रीड शरीफ। जी, क्योंकि बेसिक जो शाह महमूद सुल्तान हैं और उनके जो वालिद ग्रामी, ये सारा सिलसिला जो है ये कश्मीर से चला। यानी ये इन सब ने वहाँ से माइग्रेशन की थी और यहाँ पे आके सिलसिला इस्लाम की जो है उसकी तबलीग करते रहे। तो इनकी वजह वफ़ात या इनकी कोई करामत? इनकी भी बहुत बड़ी करामात हैं जो यहाँ के बच्चे बच्चे के अजहानों में यूँ हैं कि जैसे कल की बात हो। अच्छा जी जी जी, क्या है वो थोड़ा बताएंगे? हल्का सा, थोड़ा मुख्तसर सा हो ताकि व्यूवर्स जो है इस चीज़ को देख सकें जी कि इनके इनका क्या एक करामत थी। जी इनकी कहा जाता है कि एक बड़ी करामत ये थी कि इनकी इनके शागिर्दों में भी जिन्नात थे, और एक जिन था तो उसने क्या किया कि उसने अपनी टोपी लेकर इनके घर में दाखिल हुआ और उसने कहा मुझे कुछ राशन चाहिए। अच्छा तो जब वो घर में पहुंचा तो उस जिन्नात ने वो जितना राशन था वो सारा डाल दिया। तो शाही बाबा हुजूर को ये जानते थे, तो उन्होंने कहा कि जो अपना हिस्सा है वो लेकर जाओ। अच्छा जी, और इनकी जो औलाद है ये इस गांव में ये सारी इन्हीं की औलाद है। यानी इसमें और कौन कौन सी जो अक़वाम है वो इस वक्त यहाँ पे रह रही हैं, मुकीम है यहाँ पे इस इलाके में इस इलाके में इस जहाँ हम इलाके खड़े हैं इस में वक्त? सैयद हैं, गुजर हैं और कौशी हैं। और मेजॉरिटी के साथ कौन से लोग हैं? यहाँ पर मेजॉरिटी जो है वो सादात की है। अच्छा, जी जी यानी होल्ड यहाँ पे सादात का है। जी जी। तो ठीक है जी, बड़ी खुशी हुई हमने आज इस मज़ार का डिटेल विज़िट किया, इसको देखा, और उम्मीद करते हैं नाज़रीन आप भी इसको वीडियो को देखकर इससे कुछ ना कुछ आपके अज़हान में बैठा होगा, आपको समझ आई होगी। चूँकि औलिया अल्लाह ये अल्लाह ताला की तरफ से एक हम लोगों तक जो चीज़ पहुँची है वो ये है कि ये एक उसका ख़ास करम है जो हमें अता किया हुआ उसने, ताकि हम इन हस्तियों के ज़रिए अपनी जो हाजात हैं उनको अल्लाह के हज़ूर पेश कर सकें और उनकी बराबरी हो। तो एक नई वीडियो के साथ इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे जो कि इनके दूसरे भाइयों की होगी, वहाँ पे आपको उसका डिटेल विज़िट करवाएंगे। शुक्रिया।